So in the last class, we have seen the shear force and bending moment diagram for cantilever beam in two conditions: when there is a point load application and when there is a uniformly distributed load application. Okay, so we will see a mixture of the both conditions in this case. Let me draw it first. So uniformly distributed load is being applied in this W per unit run. Length is L. Also, a point load is applied at free end, which is W. So we take a section at X distance, take this distance X. Now we have to draw shear force and bending moment diagram for this condition. Now let's see what would be shear force at X distance. Shear force at X distance, as we can see, a W force is acting. So minus W plus there is a uniformly distributed load is also acting. It is W per unit run. So for if we take it for X distance, then it will be W into X. Okay, at the midpoint or at X by 2 distance. So the shear force would be Wx. We will have to add it to. So what we got is shear force at X distance is minus W plus Wx. It is again depending on length X. Okay. So it will again be a straight line. Now let us find out the bending moment at X distance. So what will be the bending moment at X distance? Okay. So minus sign will be common just because it is giving your anti-clockwise motion, clockwise motion. So we are taking negative sign for clockwise motion. Now what will be the bending moment at X distance? First, this W into X will be there. No problem with that. And secondly, what we will get? Wx at distance of X by 2. So Wx into X by 2 or Wx square by. So we get shear force as minus W plus W into X and bending moment Wx plus Wx square by 2. So let's draw it. First we see shear force. So at the free end, at X, when X is equal to 0, when X will be equal to 0, in previous cases we were getting 0 shear force. Okay, but in this case what we will get? A W shear force. Okay, so we have to draw W, because if X is 0, then this term will become 0. Only we will get W. So suppose a distance W is like this. Okay, till this point, this is W. Now at L, when X is equal to L, जब distance X L के बराबर हो जाए, तब हमको मिलेगा W plus WL. Okay, and it will be a straight line as it is depending on X. So it is a equation of a straight line. Let's see. W plus WL कुछ इधर यहाँ पे आएगा. Just join it. So this kind of shear force we will be getting. Okay. Now let's see bending moment. Bending moment when X is equal to 0 would be again 0 only. Okay, X को आप अगर 0 पुट कर देते हो यहाँ पे, तो आपको बेंडिंग मोमेंट 0 मिलता है.
एट द फिक्स्ड एंड व्हाट वी विल गेट, x इक्वल टू एल हो जाएगा, तो w इंटू एल प्लस डब्ल्यू एल स्क्वायर बाय टू। तो यहाँ पे आपको मिलेगा w इंटू एल प्लस डब्ल्यू एल स्क्वायर बाय, ठीक है। अब ये आपका एक पैराबोला का इक्वेशन है, जैसा आप देख सकते हैं। तो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर जो होता है आपका पैराबोला, so it is similar, so there should be a parabolic curve here, join it in the form of parabola. So this is the bending moment and shear force diagram in this condition. I don't think there would be any problem with this. Let's move on. नेक्स्ट कंडीशन देखते हैं, जब किसी पार्ट पे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड लग रहा है, ना कि पूरे सेक्शन पे। सपोज करो ये पॉइंट ए हो गया, पॉइंट बी, यहाँ बीच में कहीं पे भी, नॉट नेसेसरली एट द मिड पॉइंट, एक पॉइंट है सी। अब यहाँ पे आपका यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड लग रहा है, ठीक है, सिर्फ इतने ही डिस्टेंस पे लग रहा है। इट्स वैल्यूज अगेन डब्ल्यू पर यूनिट रन। तो इस डिस्टेंस को हम ले लेते हैं ए, इस पूरे डिस्टेंस को हम ले लेते हैं एल। अब इस केस में हमको फाइंड आउट करना है कि क्या होगा। तो पॉइंट बाय पॉइंट हम लोग फाइंड आउट करना चालू करते हैं। एट ए फाइंड आउट करते हैं, फिर सी फाइंड आउट करेंगे, फिर बी फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहले सीआर फोर्स एट पॉइंट ए देखते हैं हम कितना होगा। एस एक्स एट पॉइंट ए, तो ए पॉइंट पे आपको कोई सीआर फोर्स लगता हुआ नहीं दिख रहा है, ठीक है। तो when a is equal to 0 or when x is equal to 0, what we are finding that shear force at s x s at a लिख लेते हैं इसको, आपका आ रहा है 0, ठीक है। अब c पे देखते हैं कि कितना shear force की वैल्यू आएगी s at c, पॉइंट c। तो पॉइंट सी पे अगेन आप जैसा देख सकते हैं, यहाँ पे आपका w इंटू ए आएगा, जो कि a बाय टू डिस्टेंस पे लग रहा होगा, राइट। ये डिस्टेंस आपका a बाय टू है। तो एट सी पे आपको मिल रहा है एक सीआर फोर्स विच इज इक्वल टू डब्ल्यू इंटू ए, ठीक है, और कोई सीआर फोर्स नहीं है। सिमिलरली एट पॉइंट बी देखते हैं, बी पे भी क्या आएगा आपका माइनस डब्ल्यू इंटू ए, क्योंकि इसके बीच में और कहीं कोई फोर्स नहीं है, यही आपका डब्ल्यू इंटू ए लग रहा है, ठीक है, जो कि एट द मिडिल सेक्शन ऑफ ए सी लग रहा है। तो आपको हर पॉइंट पे आपको सीआर फोर्स मिल गया है, ठीक है। ए पे आपका 0 आ रहा है, यहाँ पे तो कोई फोर्स अभी तक हमको दिखा नहीं है। सी पे जब पहुंचते हैं तो हमको बीच में एक डब्ल्यू इंटू ए दिखा है, तो हमने डब्ल्यू इंटू ए कर दिया। और बी पे भी सिर्फ यही फोर्स लग रहा है, तो टोटल आपका डब्ल्यू इंटू ए फोर्स लग रहा है एट पॉइंट सी एंड एट पॉइंट बी। अब देखते हैं बेंडिंग मोमेंट, बेंडिंग मोमेंट एट डिफरेंट पॉइंट्स, एम एक्स। सो बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट ए अगेन इज 0, यहाँ पे कोई बेंडिंग मोमेंट नहीं लगेगा क्योंकि ये तो जीरो डिस्टेंस है। एकदम एंड पॉइंट को हम जीरो डिस्टेंस लेकर के चल रहे हैं, ठीक है। अब पॉइंट सी पे देखते हैं कि क्या बेंडिंग मोमेंट आएगा। पॉइंट सी पे हमको मिलेगा डब्ल्यू इंटू ए बाई टू, ठीक है। इस पॉइंट सी पे अगर मोमेंट लेते हैं, पॉइंट सी हो गया आपका माइनस डब्ल्यू ए स्क्वायर बाय टू। अब पॉइंट बी देखते हैं, पॉइंट बी पे आपको कितना बेंडिंग मोमेंट मिल रहा है। तो पॉइंट बी पे आपको मिलेगा डब्ल्यू इंटू एल माइनस ए बाई टू, ओके। पूरा का पूरा अगर ए बाई टू है, पूरा का पूरा एल है, और उससे मैं ए बाई टू डिस्टेंस माइनस कर देता हूँ, ठीक है।
तो जो बचा हुआ डिस्टेंस होगा यहाँ से लेकर के यहाँ तक आपको बेंडिंग मोमेंट मिलेगा। इस फोर्स का मोमेंट इस पॉइंट पे अगर आपको निकालना है तो बी से लेकर के पॉइंट को मैं टेम्पोरली कुछ नाम दे देता हूँ, सपोज करो डी। ठीक है, तो बी से लेकर के डी तक का आपका डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, जो कि क्या होगा एल माइनस ए बाय टू। तो बेंडिंग मोमेंट एट बी वुड बी डब्ल्यू इंटू ए माइनस इंटू एल माइनस ए बाय। ठीक है, तो अब डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं इसका। शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट है। एट पॉइंट ए वी आर गेटिंग जीरो। ठीक है, एट पॉइंट सी हमको मिल रहा है डब्ल्यू इंटू ए। सपोज करो ये डिस्टेंस आपका डब्ल्यू इंटू ए है, और पॉइंट बी पे भी डब्ल्यू इंटू ए। ठीक है, सो जस्ट देखो एट फ्रॉम ए से सी आपका यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड लग रहा है। हमको पता है कि ये स्ट्रेट लाइन होता है, प्रीवियस केस में हम देख चुके हैं। अगर आपको यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड है तो एक स्ट्रेट लाइन आएगा। ठीक, और सी से बी तक आपका डब्ल्यू इंटू ए कॉन्स्टेंट है। ठीक है, सी से बी के बाद कुछ चेंज नहीं हो रहा, तो हम इसको इस तरह से ड्रॉ कर लेंगे। ये आपका शियर फोर्स डायग्राम हो गया। नाउ लेट्स सी बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। अगेन पॉइंट ए पे जीरो बेंडिंग मोमेंट है। ठीक है, पॉइंट सी पे देखिए कितना बेंडिंग मोमेंट आ रहा है, माइनस डब्ल्यू ए स्क्वायर बाय टू। तो सपोज करो इस पॉइंट पे माइनस डब्ल्यू ए स्क्वायर बाय टू है। ठीक है, अब बी पे आ रहा है डब्ल्यू इंटू ए इंटू एल माइनस ए बाय टू। ठीक, तो थोड़ा सा और इंक्रीज होगा। अगर आप ग्राफिकली अगर आपके पास वैल्यूज दी हुई होंगी तो आपको एक्चुअल वैल्यू पता होगा कि कितना आ रहा है। अभी हम अंदाज से थोड़ा सा डब्ल्यू ए स्क्वायर बाय टू से थोड़ा बड़ा ही होगा वो। हम थोड़ा नीचे करते हैं इसको। इसको हम देखेंगे डब्ल्यू इंटू ए इंटू एल माइनस ए बाय। ठीक है, जो कि आ रहा है अगेन एक पैराबोलिक कर्व आपका बनेगा यहाँ से यहाँ तक, क्योंकि ए से सी तक आपका यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड है। और ये एक आपका पैराबोलिक इक्वेशन आता है। बट फ्रॉम सी टू बी आप देख सकते हैं कि यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड नहीं है। ठीक है, तो आपको एक स्ट्रेट लाइन मिलेगा। प्रीवियस क्वेश्चंस में हम ये करके देख चुके हैं कि जब यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड हमको मिलता है तो शियर फोर्स एक स्ट्रेट लाइन आता है और बेंडिंग मोमेंट एक पैराबोला आता है। और जब आपके पास एक पॉइंट लोड होता है या कोई लोड नहीं होता तो शियर फोर्स के केस में आपको एक पैरेलल लाइन मिलता है, और बेंडिंग मोमेंट के केस में आपको एक स्ट्रेट लाइन मिलता है, इस तरह से। तो आपको ये चीज याद रखना है कि जब भी कैंटिलीवर का केस है और यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड लग रहा है तो आप पैराबोला बनाओगे इन केस ऑफ बेंडिंग मोमेंट, और शियर फोर्स में आप एक स्ट्रेट लाइन बनाओगे। और जब आपको कोई लोड नहीं है या पॉइंट लोड है तो उस केस में आप एक पैरेलल लाइन बनाओगे शियर फोर्स के केस में, और एक स्ट्रेट लाइन बनाएंगे आप बेंडिंग मोमेंट के केस में। सो दिस वाज शियर फोर्स बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। अब इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन करके देखते हैं। ओके, तो ड्रॉ द शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम फॉर कैंटिलीवर लोडेड एज सोन। मैं यहाँ पे सिर्फ फिगर बना दे रहा हूँ। पॉइंट ए है, पॉइंट सी, डी, ई, सी से डी तक आपको यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड है। ए पे आपका 1 किलो न्यूटन का पॉइंट लोड लग रहा है। ये है 2 किलो न्यूटन पर मीटर। यहाँ पे अगेन 1 किलो न्यूटन। डिस्टेंस आपका ये 1 मीटर दिया हुआ है, ये भी 1 मीटर है। यहाँ से यहाँ तक आपको 2 मीटर दिया हुआ है, एंड यहाँ से यहाँ तक आपको अगेन 1 मीटर। ठीक है,
तो ये आपका क्वेश्चन है, आपको कहा जा रहा है कि इसका आपको बेंडिंग मोमेंट एंड शियर फोर्स डायग्राम बनाना है। अगर आपके पास कॉपी पेन है तो 2 मिनट ट्राई करके देखिए क्या होगा, फिर हम इसमें प्रोसीड करते हैं। तो ठीक है, इसमें हम क्या करेंगे, हर पॉइंट पे हम निकाल करके देखते हैं कि शियर फोर्स क्या आ रहा है। ठीक, तो शियर फोर्स एट ए क्या होगा आपका, 1 किलो न्यूटन या -1 किलो न्यूटन जो आ रहा है। एट सी अगेन -1 किलो न्यूटन, क्योंकि ए से सी तक वही 1 किलो न्यूटन लग रहा है। ठीक है, अब एट डी निकालना है आपको। एट डी कितना आएगा, देखो -1 तो है ही है, अगेन -2 × 2, क्योंकि सी से डी डिस्टेंस है तो 2 × 2 4 आएगा। -1 -2 × 2, और ये कितने डिस्टेंस पे लगेगा, वन एट हाफ। ये सी से डी तक आपका अगर 2 मीटर है तो इसके आधे पे लग रहा है, यानी 1 मीटर पे। तो ठीक है, सॉरी ये शियर फोर्स निकालना नॉट रिक्वायर्ड टू वन। हाँ, तो 1 किलो न्यूटन आपका लग ही रहा है, प्लस 2 × 2 2 किलो न्यूटन पर मीटर है, ये 2 मीटर का लेंथ है, और -4, इट विल गिव यू -5 किलो न्यूटन। ठीक है, अब देखते हैं एट पॉइंट ई। तो पॉइंट ई तक भी आपका वही -5 किलो न्यूटन लगेगा, क्योंकि डी से ई के बीच में कोई फोर्स हमको नहीं दिख रहा है, तो जितना फोर्स हम पीछे कैलकुलेट किए वही उतना ही रहेगा, तो -5। अब हम निकालते हैं एस एट बी। बी पॉइंट पे कितना होगा, तो आपका डी तक तो -5 आ ही रहा था। ठीक है, तो -5, उसके बाद एक 1 किलो न्यूटन का और ऐड हो गया, सो -1, विच विल बी इक्वल टू -6 किलो न्यूटन। ठीक, अब देखते हैं बेंडिंग मोमेंट। तो बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट ए वुड बी 0, क्योंकि ए आपका 0 डिस्टेंस है यहाँ पर, तो खैर फ्री एंड पे आपका हमेशा 0 ही बेंडिंग मोमेंट आएगा, चाहे कुछ हो जाए, अनटिल और अनलेस आपको एक बेंडिंग मोमेंट यहाँ पे दिया हुआ ना है क्वेश्चन। अगर एक बेंडिंग मोमेंट यहाँ पे इस एंड पे कुछ दे दिया गया है तो आपको वो ऐड करना पड़ेगा, बट इसके यहाँ पे आपको कुछ नहीं है, तो 0। नाउ बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट सी कितना होगा, 1 × 1। ठीक है, 1 से लेकर 1 × 1, 1 किलो न्यूटन इंटू 1 मीटर, तो इट विल बी -1 किलो न्यूटन मीटर। Now let's find out at D। अब D पे कितना आएगा, -1 × 3, 2 + 1, -1, 1 × 3 हो ही गया। उसके बाद आपका यहाँ पे 2 किलो न्यूटन पर मीटर लग रहा है, यानी कि 4 किलो न्यूटन पर मीटर। सो 4 किलो न्यूटन पर मीटर इंटू 1 आपको और इसमें ऐड करना है। सो व्हाट विल बी गेट, -1 × 3 -4 × 1। ठीक है, इट विल गिव यू -7 किलो न्यूटन मीटर। ठीक है ना, यहाँ पे आपको 1 किलो न्यूटन लग रहा है ए पे। ठीक है, आपको डी पॉइंट पे निकालना है, तो डिस्टेंस 3 है, तो 1 × 3 -2 × 2 4 यहाँ पे लग रहा है एट डिस्टेंस 1 मीटर, एट द मिड पॉइंट लगता है, तो डी पे हमने वो ऐड कर दिया, आपका आ गया -7 किलो न्यूटन मीटर। अब एट पॉइंट ई निकालते हैं, एम एट पॉइंट ई क्या होगा, सबसे पहले 1 × 2 + 1 + 1 यानी 4, तो -1 × 4, अगेन -4 इंटू यहाँ पे 1, यहाँ पे 1, 4 × 2,
और कोई नहीं है, तो दिस विल गिव यू 4 minus 8, that would be equal to -12 kilonewton meter। ठीक है, अब लास्ट बच गया आपका एट पॉइंट बी। सो एट पॉइंट बी -1 इंटू टोटल आपका डिस्टेंस है 1 + 2 3 4 5 -1 इंटू 5। यहाँ पे आपका 2 × 2 यानी 4 किलोन्यूटन और लग रहा है, तो 4 किलोन्यूटन, यहाँ पे 1, यहाँ पे 1, यहाँ पे 1, मतलब टोटल 3 मीटर। ठीक है, -4 × 3, -1 किलोन्यूटन और लग रहा है कितने डिस्टेंस पे, 1 मीटर पे। ठीक, -1 × 1, तो ये आपको मिलेगा 12 5 17 1 18 -18 किलोन्यूटन मीटर। अब आपके पास हर पॉइंट पे शियर फोर्स आ गया, हर पॉइंट पे बेंडिंग मोमेंट आ गया, तो आपको डायग्राम बनाना कोई मुश्किल काम नहीं है। जैसे सी पॉइंट ए पे आपका शियर फोर्स आ रहा है -1, ये 1 ले लो यहाँ पे। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक आपने 1 किलोन्यूटन ले लिया। 1 से ए से लेकर के सी तक, सी पे भी 1 है, तो यहाँ से यहाँ तक आपका एक पैरेलल लाइन आएगा। ठीक है, ये भी आपका 1 किलोन्यूटन है। अब सी से लेकर के डी तक, मतलब एट पॉइंट डी आपका आ रहा है -5 किलोन्यूटन, टू डी पे थोड़ा सा नीचे, 1 से बड़ा ही होगा 5, तो लेट्स सी समवेयर हियर, ये आपका आ गया 5 किलोन्यूटन। ठीक है, अब हमको पता है कि यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड है, तो एक स्ट्रेट लाइन ही बनेगा। एनीवे ग्राफ में भी एक स्ट्रेट लाइन दिख रहा है आपको, जो इंक्लाइंड होगा थोड़ा। ये हो गया। उसके बाद आपका एट पॉइंट ई आया है -5 किलोन्यूटन ही, तो यहाँ से यहाँ तक फिर एक पैरेलल लाइन है आपका। ठीक है, जो कि 5 किलोन्यूटन ही होगा। एंड लास्ट एट पॉइंट बी वी आर गेटिंग 6 किलोन्यूटन, सो यहाँ पे आपका आ गया 6 किलोन्यूटन। तो इस तरह का आपका सॉरी, ई एट पॉइंट ई आपका -5 नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे डी तक तो -5 आ ही रहा है, ई पे आपको 1 किलोन्यूटन और मिल गया है। ठीक है, सो ई पे भी आपका 6 किलोन्यूटन ही होगा। -5 -1, सॉरी फॉर द मिस्टेक। ये देखो, डी तक आपका -5 डी तक आपका -5 आ रहा था, इसके बाद ई पॉइंट पे आपको यहाँ पे एक फोर्स और मिला जो हमको ऐड करना है, तो यहाँ पे भी 6 है, और ई पे भी 6 है, और बी पे भी 6। ठीक है, तो ये आपका कुछ इस तरह का फिगर हो जाएगा, कुछ इस तरह से। ठीक है, ये भी 6 किलोन्यूटन है आपको, ये भी 6 किलोन्यूटन। तो इस तरह का आपका शियर फोर्स डायग्राम बनेगा। डी से ई तक आपका 5 किलोन्यूटन था, तो डी से ई तक हमने 5 किलोन्यूटन कांस्टेंट रखा है, और एट ई वी आर गेटिंग 6, तो ई पे आपको एक और इंक्रीज करना है, जो कि 6 हो जाएगा। तो ये आपका शियर फोर्स डायग्राम हो गया। सिमिलरली हम देखेंगे बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। एंड अगेन इस फिगर में भी आप देख सकते हो, जहां पे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड है वहीं पे इंक्लाइन लाइन बनी है, बाकी हर जगह एक पैरेलल लाइन है। ठीक है, यानी ए से सी तक आपको एक पैरेलल लाइन मिलेगा, डी से आपका ये पॉइंट ई है। ठीक है, डी से ई तक आपको पैरेलल लाइन मिलेगा, और ई से बी तक भी एक पैरेलल लाइन ही मिलेगा। सिर्फ आपका जहाँ पे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड है वहां पे इंक्लाइन लाइन मिलेगा। चलिए बेंडिंग मोमेंट पे आते हैं। सो एट द फ्री एंड इट इज 0,
एट पॉइंट सी आपको मिल रहा है 1 किलो न्यूटन मीटर। तो अगेन 1 किलो न्यूटन मीटर, ठीक है, इस तरह का इंक्लाइन लाइन आएगा क्योंकि वहां पे कोई यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड नहीं है। सी से डी तक आपको पैराबोला मिलेगा क्योंकि यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड है। तो सी पे आपको पता चल गया, डी पे कितना आ रहा है, -7। सो लेट्स टेक एट पॉइंट डी -7 here. -1 किलो न्यूटन मीटर, -7 किलो न्यूटन मीटर। तो इस पॉइंट से इस पॉइंट तक आपको एक पैराबोलिक कर्व चाहिए। एक पैराबोला बना लीजिए, ठीक। फिर आपका नेक्स्ट आता है एट पॉइंट ई, जो कि आपको मिल रहा है -12। सपोज करो यहाँ पे आपका -12 किलो न्यूटन मीटर है। अब आपको एक स्ट्रेट लाइन ही होना चाहिए, क्योंकि जहाँ पे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड है सिर्फ वहां पे पैराबोला आएगा। अदर देन दैट एक स्ट्रेट इंक्लाइंड लाइन। एंड लास्ट वी आर गेटिंग -18। सो कुछ इस तरह का आपका बेंडिंग मोमेंट और शियर फोर्स डायग्राम होगा इस केस में, ठीक है। तो इस तरह का अगर आपको क्वेश्चन आता है तो आप बेंडिंग मोमेंट शियर फोर्स डायग्राम इजीली ड्रॉ कर लोगे, आई थिंक। एक ही पेज में बनाना, ठीक है। तो होल सीट लेना क्योंकि ये थोड़ा नीचे तक जाता है, और स्केल से मेजर कर लेना। 1 है तो 1 सेंटीमीटर ले लेना, 7 है तो 7 सेंटीमीटर ले लेना, 12 है तो 12 सेंटीमीटर ले लेना, 18 है तो 18 सेंटीमीटर ले लेना। तो इस तरह से आप एक्यूरेट मेजर करके बना सकते हैं, ठीक है, जो भी है। सर हाँ, वो बेंडिंग मोमेंट एट ई पे एक बार देखिए। एट ई क्या ई क्या पे होगा, सर वन वहाँ पे इंटू 4 आया, 1 इंटू 4, उसके बाद और यहाँ पे 2 2 है, इन 2 फोर इंटू 2 और 4 फोर हो जाएगा, और 2/2 आधा उसका। हाँ, 1+1। हाँ 2। और सर ये ई का नहीं आएगा? ई पे ई पे कैसे जो आएगा, तुमको बेंडिंग मोमेंट का कब मिलता है। देखो, अगर तुमको किसी पॉइंट पे बेंडिंग मोमेंट निकालना है, सपोज इस पॉइंट में निकालना है, और यहाँ पे फोर्स लग रहा है, तो यहाँ से लेकर के यहाँ का डिस्टेंस होना चाहिए। बट ये तो आपका जीरो डिस्टेंस पे ही लग रहा है ना, तो यहाँ तक तो इसका डिस्टेंस, चलो अगर तुम इसको 1 कैलकुलेट भी कर लेते हो तो 1 इंटू 0 हो जाएगा ना। ठीक है कोई सर, डिस्टेंस तो है ही नहीं, पॉइंट टी पे ही निकाल रहे हो ना। ठीक है सर। बट फोर्स के केस में आपको कंसिडर करना है, ठीक है। फोर्स के केस यस। में आपको ये 1 न्यूटन लेना पड़ेगा। ठीक। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, और किसी को अगर कोई डाउट नहीं है तो। अभी तक हम जितने केसेस देख रहे थे, देखो इसमें डाउनवर्ड फोर्स ही लग रहा है, ठीक है। यहाँ पे भी देख रहे हो आप, डाउनवर्ड फोर्स ही लग रहा है, नहीं इस तरह का। कहीं पे आपका इस तरह का फोर्स लग गया, मान लो सी पे इस तरह का फोर्स कुछ लगा होता, तो आपको साइन चेंज कर देना। बाकी सब आप माइनस ले रहे हो तो यहाँ पे प्लस ले लेना, ठीक है। जैसे 1 किलो न्यूटन हमने माइनस लिया है, इसको यहाँ पे प्लस करना। अगर डाउनवर्ड है, ऑपोजिट डायरेक्शन में हो रहा है तो डाउनवर्ड, तो आपको साइन चेंज कर देना है। तो ये ध्यान रखिएगा, अभी सारे अपवर्ड हैं, अपवर्ड फोर्सेस को हम कंसिडर कर रहे हैं नेगेटिव, तो डाउनवर्ड फोर्स को हम पॉजिटिव कंसिडर करेंगे। ऐसा क्वेश्चन है नहीं, लेकिन अगर आता है तो आपको उसको प्लस ले लेना है। सिंपली सपोर्टेड बीम के केस में हम देखेंगे, हमको अपवर्ड फोर्सेस भी मिलेंगे, तो उसमें हम देखेंगे कैसे किया जाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं कैंटिलीवर कैरिंग लोड हुज इंटेंसिटी वेरीज यूनिफॉर्मली फ्रॉम जीरो एट द फ्री एंड टू W पर यूनिट रन एट द फिक्स एंड। तो कुछ इस तरह का है।
तो आपको ये कह रहा है कि अभी तक हम यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड देख रहे थे, अब ये कह रहा है यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड है। यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड का मतलब है कि एट द फ्री एंड आपका जीरो लोड है, और एट द फिक्स्ड एंड आपको डब्ल्यू पर यूनिट रन के हिसाब से लोड मिल रहा है। ठीक है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड था तो थोड़ा काम आसान था, अभी क्या है यूनिफॉर्मली वेरी कर रहा है, मतलब जीरो से लेकर के डब्ल्यू तक ये लोड वेरी कर रहा है डिस्टेंस के हिसाब से। ठीक है, तो अब देखते हैं कि इस केस में हमको कैसे ड्रॉ करना है। Now let's take a section X at some point. ठीक है, now let's try to find out कि इस पॉइंट पे एक्चुअल में लोड कितना लग रहा है। हमको ये तो पता नहीं कि इस पॉइंट पे कितना लग रहा है, हमको पता है फ्री एंड पे लग रहा है डब्ल्यू पर यूनिट रन और फिक्स एंड पे लग रहा है जीरो, लेकिन इस पॉइंट पे कितना लग रहा है हम नहीं जानते। तो इस केस में हम क्या करते हैं, सिमिलर ट्रायंगल्स यूज करते हैं। ठीक है, ये टोटल डिस्टेंस आपका एल दिया हुआ है। अब आप ये वाला ट्रायंगल देखिए, थोड़ा डार्क कर देते हैं हम इसको। एक ट्रायंगल ये देखो, और एक ट्रायंगल ये देखिए, यहाँ से यहाँ तक बड़ा वाला ट्रायंगल। ठीक है, अब दोनों में हम सिमिलैरिटी का यूज करते हैं। तो एक चीज आपको पता है, डिस्टेंस एक्स बाय एल इक्वल टू, इसको आप मान लो डब्ल्यू एक्स, इसी को हमको कैलकुलेट करना है कि डब्ल्यू एट पॉइंट एक्स कितना आ रहा है। ठीक है, अपॉन यहाँ पे आपका डब्ल्यू पर यूनिट रन आ रहा है, मतलब डब्ल्यू इंटू एल आ रहा है इस पॉइंट पे। पर यूनिट रन में ही कैलकुलेट कर लेते हैं, चलिए अभी। सो डब्ल्यू ले लो, यहाँ पे आपको एंड पॉइंट पे दिया हुआ है डब्ल्यू, यहाँ पे जीरो है। सो अगर हमने सिमिलर ट्रायंगल्स का यूज किया तो एक्स बाय एल इज इक्वल टू डब्ल्यू एक्स, जो हमको फाइंड आउट करना है कि यहाँ पे एक्चुअल में लोड लग कितना रहा है, और फ्री एंड आपको पता है डब्ल्यू पर यूनिट लेंथ है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे लिख दिया डब्ल्यू। तो इससे हमको क्या पता चलता है, एक्स पॉइंट हमको लग रहा है डब्ल्यू इंटू एक्स बाय एल। ठीक है, तो अब एक्स पॉइंट पे हमको ये समझ में आ गया कि लोड कितना लग रहा है। Now let's see load acting for an elemental distance dx dx from x equals to wx dot dx। तो अब ये देखिए, लोड एक्टिंग फ्रॉम एन एलिमेंटल डिस्टेंस dx कितना होगा। हमने एक्स डिस्टेंस से फाइंड आउट किया, क्या आ रहा है आपका डब्ल्यू एक्स बाय एल। सपोज करो कि एक्स डिस्टेंस नहीं था आपका, dx डिस्टेंस था, तो क्या आता, डब्ल्यू एक्स इंटू डी एक्स। ठीक है, अगर आप स्मॉल स्ट्रिप ले लोगे तो क्या होगा, डब्ल्यू एक्स इंटू डी एक्स। डब्ल्यू एक्स की वैल्यू आपके पास है। अब आपको ये फाइंड आउट करना है कि कोई और डिस्टेंस हो। यहाँ पे हमने फाइंड आउट किया एट एक्स डिस्टेंस, अगर डिस्टेंस कोई और होता, सपोज करो फ्रॉम ए टू बी कोई डिस्टेंस होता, तो हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, इसको इंटीग्रेट करेंगे तो आपको मिल जाएगा। लेट्स जस्ट सी, दस द टोटल लोड acting from an distance between A and B
x equal to a and x equal to b. तो इस तरह से आपको अगर कोई और डिस्टेंस dx है, ठीक है, आपको उसमें फाइंड आउट करना है। आपने x डिस्टेंस पे जैसे फाइंड आउट किया w इंटू एक्स बाय एल, ठीक है, ये आपका आ रहा है w इंटू एक्स बाय एल, जो w x की वैल्यू है। सिमिलरली x डिस्टेंस में नहीं, आपको किसी dx डिस्टेंस से फाइंड आउट करना है, तो आप इसी की वैल्यू को, जैसे यहाँ पे आपको w x मिल रहा है, ठीक है, आप एक छोटा सा डिस्टेंस ले लो, यहाँ पे एक स्ट्रिप बना लो। तो इतने डिस्टेंस पर अगर आपको लोड चाहिए, तो बहुत स्मॉल डिस्टेंस है तो हम ये मान सकते हैं कि ये वेरिएट नहीं करेगा। छोटा सा डिस्टेंस ले रहे हैं, बहुत छोटा डिस्टेंस, ठीक है, dx डिस्टेंस ले रहे हैं। अब इस केस में जैसा हम यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड में फाइंड आउट करते थे, क्या होता था, w इंटू जितने भी दूरी तक है हम वो कर लेते थे। जैसे x दूरी पे था तो x कर लेते थे, w इंटू एल था तो l कर लेते थे। सिमिलरली अगर dx डिस्टेंस तक ही है तो उसका क्या हो जाएगा, डब्ल्यू एक्स इंटू डी एक्स, टोटल लोड जो आएगा, ठीक है। तो वही हम यहाँ पे फाइंड आउट करना चाह रहे हैं कि अगर dx डिस्टेंस तक आपको चाहिए तो क्या आएगा, तो दैट वुड बी डब्ल्यू एक्स इंटू डी एक्स। अगर आपको इसी चीज को a से b तक वेरी करवाना है, dx डिस्टेंस पे आपका डब्ल्यू एक्स इंटू डी एक्स आ रहा है, अब a से b तक मतलब a डिस्टेंस से b डिस्टेंस तक फाइंड आउट करना, तो हम क्या करते हैं, इसको समेशन ऑफ फ्रॉम a टू b डब्ल्यू एक्स इंटू डी एक्स, और इसको हम ये भी लिख सकते हैं a टू b डब्ल्यू एक्स डी एक्स। अब आपको पता है इंटीग्रेशन क्या सिग्निफाई करता है, एरिया। इंटीग्रेशन का मतलब ही होता है कि हम एरिया फाइंड आउट कर रहे हैं, तो इसको हम ये भी कह सकते हैं एरिया ऑफ लोड बिटवीन x इक्वल टू a टू x इक्वल टू b। ठीक है, तो इसमें ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। आप बस ये समझ लीजिए कि अगर आपको कहीं का भी शियर फोर्स निकालना है, सपोज करो इस पॉइंट तक का शियर फोर्स निकालना है, तो आप इस ट्रायंगल का एरिया ले लोगे तो आपको शियर फोर्स मिल जाएगा। सिमिलरली अगर आपको बी पॉइंट तक निकालना है तो आप इस पूरे ट्रायंगल का एरिया ले लोगे, तो आपको बी पॉइंट पे क्या शियर फोर्स लग रहा है वो मिल जाएगा, ठीक है। तो जैसे कि अगर हमने एक्स डिस्टेंस पे लिया है, एक्स डिस्टेंस पे आपको अगर शियर फोर्स निकालना है तो क्या होगा, एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल। So shear force at x distance we will get area of area of the load diagram between x and a, ठीक है। सपोज करो इस पॉइंट को मैं कुछ आपको समझाने के लिए पॉइंट दे दिया p, इसको दे देता हूँ q। तो अगर आपको इस पॉइंट पे x डिस्टेंस पे अगर आपको लोड निकालना है तो वो होगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ए पी क्यू, ठीक है। इस ट्रायंगल का अगर आप एरिया निकाल लोगे तो यहाँ पे कितना लोड लग रहा है मिल जाएगा। जैसे कि इस केस में आपका आएगा हाफ, बेस हो गया आपका डब्लू, सॉरी बेस हो गया आपका एक्स, ठीक है, और हाइट हो गया डब्लू इंटू डब्लू एक्स। तो यही आपका एट एक्स डिस्टेंस पे शियर फोर्स होगा। तो यहाँ पे हम कैलकुलेट करते हैं एरिया ऑफ लोड डायग्राम बिटवीन एक्स इंटू ए। तो ये आपका वही हाफ, बेस का आपका लेंथ है एक्स, हाइट है आपका डब्लू एक्स, अगेन हाफ इंटू एक्स। डब्ल्यू एक्स हमने सिमिलर ट्रायंगल से फाइंड आउट किया है, यहाँ पे क्या आया, डब्ल्यू एक्स बाय एल, डब्ल्यू इंटू एक्स बाय एल। सो फाइनली वी आर गेटिंग हाफ डब्ल्यू एक्स स्क्वायर या डब्ल्यू एक्स स्क्वायर बाय टू एल, ठीक है। तो एक्स डिस्टेंस पे हमको मिला जो शियर फोर्स की वैल्यू है वो आती है डब्ल्यू एक्स स्क्वायर बाय टू एल। कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, सिंपली आप ये समझ लीजिए कि अगर कहीं का भी आपको शियर फोर्स निकालना है, इस केस में अगर आपको इनफॉर्मली वेरिंग लोड दिया हुआ है तो आप बस उस वहां तक के ट्रायंगल का एरिया फाइंड आउट कर लीजिए। जैसे कि अगर हमने एक्स डिस्टेंस लिया है तो इसका हमको एरिया फाइंड आउट करना है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, यानी कि हाफ इंटू एक्स इंटू
डब्ल्यू एक्स होगा, डब्ल्यू एक्स हमने सिमिलर ट्रायंगल से निकाल लिया, मतलब डब्ल्यू एक्स बाय डब्ल्यू वुड बी इक्वल टू एक्स बाय एल। तो डब्ल्यू एक्स की वैल्यू हमको मिल गई थी डब्ल्यू इंटू एक्स बाय एल। So that's what we did here। आपको शियर फोर्स की वैल्यू आ गई डब्ल्यू एक्स स्क्वायर बाय 12। अब देखते हैं बेंडिंग मोमेंट के केस में क्या होगा। अगर आपको एक्स डिस्टेंस पे बेंडिंग मोमेंट निकालना है, सो इट विल कम moment of the load acting on x a about x। तो x तक आपका जो मोमेंट लग रहा है वो होगा। इसको हम और सिंप्लीफाई करें तो एरिया ऑफ द लोडिंग डायग्राम बिटवीन x एंड a, ये आपका शियर फोर्स है, इनटू डिस्टेंस हम करते थे तो डिस्टेंस होगा डिस्टेंस ऑफ द सेंट्रोइड ऑफ दिस डायग्राम। ठीक है। शियर फोर्स हमको पता चल गया है कि इसका आपका इस ट्रायंगल का एरिया होता है, ये शियर फोर्स होता है। अब हमको अगर बेंडिंग मोमेंट निकालना है इस पॉइंट पे, पॉइंट पी पे अगर आपको बेंडिंग मोमेंट निकालना है तो क्या करोगे। देखो जब आपका यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड था हम ले लेते थे कि मिड पॉइंट पे लग रहा है क्योंकि सिमेट्रिकल था, जितना इस तरफ है उतना इस तरफ है। बट इस केस में आपको ट्रायंगल मिल रहा है, तो ट्रायंगल के केस में आप ये मान के चलते हो जो आपका टोटल लोड लग रहा है वो कहाँ पे लग रहा है, सेंट्रॉइड ऑफ दिस ट्रायंगल। तो इस ट्रायंगल का सेंट्रॉइड आप जैसा देख सकते हो यहाँ पे आपका 2/3 ऑफ ओपी आएगा। ठीक है, यानी नियर अबाउट इस पॉइंट पे कहीं हम मान सकते हैं कि ये लग रहा होगा, टोटल लोड जो लग रहा है डब्ल्यू एक्स। ठीक है, वो आएगा आपका कहीं करीब 2/3 डिस्टेंस पे इसकी है, 2/3 ऑफ एक्स। ठीक, तो आप अगर इसका पूरा का एरिया निकाल लेते हो, जो कि एरिया हमको मिला है हाफ, कितना एरिया मिला था हमको, डब्ल्यू एक्स स्क्वायर बाय 12 मिला था इस पॉइंट पे। तो डब्ल्यू एक्स स्क्वायर बाय 12 जो हमने लोड फाइंड आउट किया है यहाँ पे, शियर फोर्स एरिया निकाल करके हाफ बेस इनटू हाइट करके यहाँ पे हमने डब्ल्यू एक्स स्क्वायर बाय 12 एरिया फाइंड आउट किया। अब ये डब्ल्यू एक्स स्क्वायर बाय 12 लग कहाँ पे रहा होगा, इसके सेंट्रॉइड पे, यानी कि 2/3 डिस्टेंस पे लग रहा होगा। तो ये आपका डब्ल्यू एक्स स्क्वायर बाय 12 इस डिस्टेंस पे लग रहा है। अब आपको अगर मोमेंट निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, यही डब्ल्यू एक्स स्क्वायर बाय 12 है इंटू एक्स बाय 3, क्योंकि ये 2/3 डिस्टेंस पे लगेगा। सिमेट्रिकल है नहीं, एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल का सेंट्रॉइड हमको पता है कि बेस के 2/3 डिस्टेंस पे लगता है। ठीक है, तो ये चीजें आपकी बेसिक ज्योमेट्री है जो आप पहले पढ़ चुके हो, ट्रायंगल्स की प्रॉपर्टीज हैं ये। तो इसका सेंट्रॉइड आपका 2/3 डिस्टेंस पे आता है, जिनको नहीं भी पता है वो जान लो कि 2/3 डिस्टेंस पे होता है ट्रायंगल का सेंट्रॉइड। 2/3 डिस्टेंस पे होता है अगर, तो डब्ल्यू एक्स स्क्वायर बाय 12 आपको जो शियर फोर्स मिला वो लग किस पॉइंट पे रहा है, 2/3 डिस्टेंस पे। और आपको पी पॉइंट पे निकालना है तो बच कितना गया, एक्स बाय 3। तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक आपको मोमेंट मिलेगा, मतलब अगर आपको यहाँ से यहाँ तक मोमेंट निकालना है तो डब्ल्यू एक्स स्क्वायर बाय 12 इंटू एक्स बाय 3 कर दोगे तो आपको मोमेंट मिल जाएगा। तो देखते हैं क्या होता है। एरिया आपने निकाल ही लिया था लोड डायग्राम का, जो आया था आपका डब्ल्यू एक्स स्क्वायर बाय 2 एल। ठीक है, टोटल माइनस में होगा इनटू डिस्टेंस ऑफ द सेंट्रॉइड ऑफ दिस डायग्राम फ्रॉम एक्स, जो कि आया एक्स बाय 3। तो हम फाइनली हमको जो बेंडिंग मोमेंट मिलता है वो मिलता है डब्ल्यू एक्स क्यूब बाय 6 एल इस केस में। अब देखियो बेंडिंग मोमेंट का जो आपका इक्वेशन आया ये आपका क्यूबिक कर्व आ गया है, ना कि पैराबोलिक कर्व। ठीक है, और शियर फोर्स यहाँ पे इंटर्न आ गया आपका पैराबोलिक कर्व। ठीक, तो थोड़ा सा सिनेरियो चेंज हो गया इस केस में कि अगर शियर फोर्स डायग्राम आप बनाओगे यूनिफॉर्मली वेरिएटिंग लोड का, या यूनिफॉर्मली जो वेरी कर रहा है लोड जीरो से लेकर के डब्ल्यू तक,
उस केस में आपका शियर फोर्स डायग्राम का जो ग्राफ आएगा वो पैराबोलिक आएगा, और बेंडिंग मोमेंट का जो ग्राफ आएगा वो क्यूबिक कर्व आएगा। ठीक है, दोनों दिखने में लगभग एक जैसे ही दिखते हैं, पैराबोलिक और क्यूबिक कर्व। और आपको फ्री हैंड ड्रॉ करना है तो उतना चिंता नहीं करना कैसे बनेगा, बट आपको बस ये ध्यान रखना है कि आपका शियर फोर्स का कर्व पैराबोलिक है और बेंडिंग मोमेंट का कर्व क्यूबिक है। चलिए इसको देख लेते हैं हम। ये पॉइंट हो गया आपका ए, ये पॉइंट हो गया बी। ठीक है, हमने कोई डिस्टेंस ले लिया एक्स इस तरह से, राइट। यहाँ पे आपका डब्ल्यू एक्स लग रहा है, जो कि हमने फाइंड आउट किया ऊपर सिमिलर ट्रायंगल से कितना आता है वैल्यू, डब्ल्यू इंटू एक्स बाय 2l। ठीक है, सिमिलर ट्रायंगल से हमने ये हाइट की वैल्यू फाइंड आउट कर ली, यहाँ पे कितना लग रहा है इस पॉइंट पे शियर फोर्स, और उसके बाद टोटल कितना लग रहा है वो फाइंड आउट किया हमने। इसको एरिया लेकर के, यानी हाफ बेस इंटू हाइट लेकर के हाफ एक्स इंटू डब्ल्यू एक्स किया। डब्ल्यू एक्स हमने सिमिलर ट्रायंगल से फाइंड आउट किया था, जो कि आया था डब्ल्यू इंटू एक्स बाय एल। ठीक है, और टोटल वैल्यू आपकी आई डब्ल्यू एक्स की, शियर फोर्स की वैल्यू जो आई इस पॉइंट पे वो आई WX² बाय 2l। ठीक है, और ये लगेगा कहाँ पे आपका, एट 2x/3 डिस्टेंस पे। ठीक है, तो एक बार फिर देख लो, समझ लो क्या हो रहा है यहाँ पे। जब भी हमने किया, हमको पहले तो शियर फोर्स फाइंड आउट करना है। शियर फोर्स फाइंड आउट करने के लिए डेरिवेशन छोड़ दो, अभी आप ये देखो कि होता क्या है, एरिया ऑफ द ट्रायंगल। ठीक है, तो शियर फोर्स अगर आपको किसी पॉइंट पे भी फाइंड आउट करना है, जैसे इस केस में आपको एक्स पॉइंट पॉइंट पे फाइंड आउट करना है, तो हमको एरिया देखना पड़ेगा हाफ एक्स इंटू डब्ल्यू एक्स। डब्ल्यू एक्स की वैल्यू हमारी आ रही थी डब्ल्यू इंटू एक्स बाय एल, तो हाफ डब्ल्यू इंटू डब्ल्यू एक्स बाय एल किया तो WX² बाय 2l आ गया, वो शियर फोर्स आ गया। अब ये शियर फोर्स आपका लगेगा किस डिस्टेंस पे, जितना भी उस ट्रायंगल का सेंट्रोइड, यानी कि 2x/3 डिस्टेंस पे लगेगा। तो यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस आपका x/3 है। चलिए शियर फोर्स डायग्राम ड्रॉ करते हैं। WX² बाय 2l है। ठीक है, x पे डायरेक्टली डिपेंड कर रहा है, मतलब एट पॉइंट ए शियर फोर्स क्या होगा, 0। x 0 हो गया तो आपका शियर फोर्स उस पॉइंट पे 0 हो गया। उसके बाद हमको फ्री एंड पे अगर फाइंड आउट करना है, क्या आएगा, x आपका चेंज हो जाएगा l में, यानी WL² बाय 2l, which will in turn give you WL/2। WX को हमने बस x को l से कन्वर्ट चेंज कर दिया, WL²बाय 2l। आपका ये कैंसिल हो गया, आपका है WL/2, और ये कर्व बनेगा एक पैराबोलिक कर्व। ठीक है, तो WL/2 आपका शियर फोर्स होगा फिक्स्ड एंड पे, फ्री एंड पे 0 होगा। नाउ लेट्स फाइंड आउट द बेंडिंग मोमेंट। बेंडिंग मोमेंट का हमारा इक्वेशन आ रहा था WX³ बाय 6l। ठीक है, अब x की वैल्यू में l जब 0 एट फ्री एंड ले रहे हो तो x 0 हो जाएगा, यानी कि बेंडिंग मोमेंट भी 0 होगा। फ्री एंड पे हमेशा बेंडिंग मोमेंट 0 होगा, अनटिल और अनलेस कोई अलग से आपको बेंडिंग मोमेंट दिया हुआ हो। ठीक है, और फिक्स एंड पे क्या होगा, यहाँ आप x की जगह सॉरी, यहाँ पे x की जगह l रख दीजिए, मतलब WL³ बाय 6l हो जाएगा, और जो कि इंटर्न आपका आ जाएगा WL² बाय 6। फ्री एंड पे आपका आएगा -WL² बाय 6। ठीक है, और ये कर्व होगा आपका क्यूबिक कर्व। बस ये याद रखना, ये कर्व आपका क्यूबिक है, क्यूबिक कर्व, और ये कर्व आपका आएगा पैराबोलिक। ठीक है, सो बाकी चीजें अभी तक आसान थी, इसमें बस आपको इतना ध्यान रखना है कि उसमें आप जब शियर फोर्स निकाल रहे थे तो हम क्या कर ले रहे थे कि डायरेक्ट, जैसे W पर यूनिट रन दिया हुआ था उसमें आपको, तो डायरेक्ट W इंटू एल कर देते थे। ठीक है, या W इंटू एक्स कर देते थे। इस केस में आप वो नहीं कर सकते। इस केस में आपको जो फाइंड आउट करना है, अगर शियर फोर्स किसी डिस्टेंस पे, तो आपको W इंटू
यानी कि आपको एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना है। अगर इस फिगर में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड में अगर निकालना है तो आपको एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना पड़ेगा, आप डायरेक्टली डब्ल्यू इंटू एल नहीं कर सकते। ठीक है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालोगे तो आपका आएगा अराउंड डब्ल्यू एल बाय टू आता है वो, और एक्स डिस्टेंस पे कर रहे हो तो वो डब्ल्यू एक्स स्क्वायर बाय टू एल होगा। ठीक है, तो जनरली इस टाइप का क्वेश्चन आपसे पूछा नहीं जाएगा। जस्ट फॉर एक्सप्लेनेशन मैंने ये बता दिया, यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड का क्वेश्चन बहुत कम आता है कहीं पे भी, बहुत मुश्किल से ही आएगा अगर आपको पूछा भी गया तो, और वो भी इजी आएगा। इसको बस समझने के लिए कर लो, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड में जस्ट आप जो लोड लगा है पर यूनिट रन इनटू डिस्टेंस करते हो, इस केस में आप एरिया ऑफ ट्रायंगल लेते हैं। ठीक है, बाकी चीजें सेम है। और ये एकदम मिड पॉइंट पे ना लग करके लगता है टू थर्ड डिस्टेंस पे, ठीक, सेंट्रोइड की वजह से, क्योंकि ट्रायंगल का सेंट्रोइड आपका एकदम मिड पॉइंट पे नहीं आता है, वो टू थर्ड डिस्टेंस पे आता है। तो यही था आपका कैंटिलीवर का। ठीक है, एक केस और है जो कि अभी हम इस तरह का केस देखे थे। ठीक है, देर इज वन मोर केस जो इस तरह से जाता है, राइट। तो ये थोड़ा और कॉम्प्लेक्स है, देखते हैं अगर इसकी जरूरत पड़ी तो मैं समझाऊंगा, नहीं तो बुक में है, क्वेश्चंस में अगर जरूरत पड़ी तो हम करेंगे, अदरवाइज अभी इसको लीव करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन सॉल्व करते करते अगर हमको जरूरत लगा कि इसको भी पता होना चाहिए, कॉन्सेप्ट वही है, एरिया ऑफ ट्रायंगल इसमें भी है, इसमें भी सेंट्रोइड है टू थर्ड, बस इसका डायरेक्शन चेंज हो गया है। यहाँ पे आपका फ्री एंड से इस एंड तक, सॉरी, इस एंड तक वेरी कर रहा था, वहां पे आपका फिक्स एंड से फ्री एंड तक वेरी करता है, जीरो टू डब्ल्यू एल। चीजें सब सेम है, लेकिन यहाँ पे आप जैसे राइट साइड से ले रहे थे, ठीक है, फ्रॉम ए टू बी जा रहे थे हम, कोई मोमेंट वगैरह लेने के लिए, यहाँ से ए पे निकाल के फिर पी पे निकाल पे बी पे निकाल रहे थे, वहां पे आपको उल्टा करना पड़ेगा, यहाँ से लेकर के यहाँ तक जाना पड़ेगा। ठीक है, थोड़े से साइन डिफरेंट हो जाते हैं, बाकी चीजें सेम है, बट उसको देखते हैं, जरूरत पड़ी तो समझाया जाएगा, अदरवाइज बुक में आप भी खुद भी समझ सकते हो उस चीजों को। कॉन्सेप्ट सेम है, एरिया ऑफ ट्रायंगल और सेंट्रोइड। ठीक है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड में आपका डब्ल्यू इंटू एल या डब्ल्यू इंटू जो भी डिस्टेंस है वो लेते हैं मिड पॉइंट पे, इसमें हम एरिया ऑफ ट्रायंगल लेते हैं और टू थर्ड डिस्टेंस पे लेते हैं। सो दिस वाज ऑल अबाउट कैंटिलीवर। इन नेक्स्ट क्लास वी विल वी विल डिस्कस अबाउट सिंपली सपोर्टेड बीम्स। सिंपली सपोर्टेड बीम्स में आपका एक एंड फिक्स नहीं रहता है, दो सपोर्ट रहते हैं एंड में, और एक फोर्स ये लग रहा है या यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लगेगा। ये सिंपली सपोर्टेड बीम होता है। इस केस में हमारा शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम कैसा बनेगा हम वो देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही। जिन लोगों ने अटेंडेंस नहीं बनाया प्लीज मार्क कर दीजिए, लिंक मैसेजेस में है, एंड अदर्स कैन लीव द मीटिंग।